Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really great. I'm CA Sonali and welcomes you on the new lecture of your CA Foundation. We are studying topic related to BRS, that is Bank Reconciliation Statement. In the very last lecture we have covered some theory point or some basic understanding of the BRS. Now in this lecture I will tell you more in depth theoretical points or in-depth analysis of the BRS, and we will also cover some question which is from your ICS study module. Guys, always follow your study module. So in the last lecture, just recap what we studied in the last lecture. In the last lecture we have started BRS, that is Bank Reconciliation Statement. Now you have asked, ma'am, what is the BRS or BRS क्या होता है? So basically BRS means we need to reconcile our bank or our cash book with our bank's passbook. Why? I have given you different reason, and because of that reason we need to reconcile it. Now let's understand, or I have given you one example yesterday that in as per my cash book means what? कैश बुक मीन्स कैश जो बुक होता है आपका, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक होता है, उसमें एक बैंक वाला कॉलम होता है, एंड दैट बैंक कॉलम वी नीड टू रिकंसाइल विथ अवर बैंक्स पासबुक. So whenever I am telling you cash book, that is means bank's column in our cash book. Okay, so as per my accounting records or as per my cash book, I have rupees 350 in my bank account. But when I go to ICICI bank and I'll check, I was like कि अच्छा मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है बताना ज़रा. They are like it's a 450 rupees. I was surprised. I'm so happy that 100 rupees extra. Wow. But according to point of view of accounts, I need to check. What I need to check? Why this difference is? क्यों ये difference आखिर क्यों आया? Why there is a difference between my cash book and bank's passbook? So to find out this difference, what we need to do, we need to prepare the bank reconciliation statement or BRS. Now let's move further. I have given you a very simple example regarding your banks. Why your bank is always correct? Because your bank is your mother. Whenever there is a fight between mummy and papa or mother and father, who is always right? You all know, and in everyone's house there is your mother who is always right. So who is our mother in this chapter? Our mother is bank, and bank is always right. सो जब भी हमें BRS करना है या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, हमें किसको कंसिडर करना है या फिर किसको सही मानना है? ऑलवेज यूर बैंक इज़ करेक्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैंक का सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ अ कम्प्लीटली रोबोटिक बेस्ड और AI बेस्ड. वो 99.999% सही होता है. इसीलिए rather than believing in our own made or human made cash book, what we will believe on bank's passbook or bank system, and because of that your bank is always right. तो हमें कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, we need to check or we need to take a point of view of always बैंक के हिसाब से ही सोचेंगे. अगर बैंक ने माइनस किया है अपनी बुक्स में, तो हमें बिना सोचे समझे उसका इफेक्ट बैंक ने जो किया है वैसा ही देना है. सो बैंक इज ऑलवेज राइट. नाउ I have explained you four kind of situations in which I have given you effect. It will be plus or a minus. So let's recap this, because in many question you are able to find this four. एक्चुअली बेसिक ये मैंने चार चीज़ें बता दी. बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है आपको ये चारों में से बहुत कुछ चीज़ें आ जाएंगी और आपको इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो स्टार्ट में सबसे पहले क्या था? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन माय बैंक. व्हाट माय फ्रेंड डिड, आई हैव गिवन यू एग्जांपल यस्टरडे. व्हाट माय फ्रेंड डिड इन माय बैंक अकाउंट और एज पर माय कैश बुक,
As per my cash book, there is a balance of rupees 350, and as per my bank book, there is a balance of rupees 350. But one of my friend whose name is Surbi, what she did, she gave me 100 rupees and she have not informed me. Now, as per my bank book, there is a balance of 450, but as per my cash book, there is a balance of 350 only. Who is always right? Bank is always right. So what I need to do here, I need to add this 100 rupees. So same it is that अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन माय अकाउंट. मेरे जो कस्टमर है या मेरी जो फ्रेंड है सुरभि, उसने मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए. अभी क्या हुआ मेरे को पता है क्या? नहीं पता है. इसीलिए मेरा बैलेंस, मेरे कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो कम दिखा रहा है. बट हु इज़ ऑलवेज राइट? बैंक इज़ ऑलवेज राइट. तो मैंने क्या किया, उस 100 रुपीज़ को मेरे कैश बुक वाले बैंक कॉलम में भी ऐड कर दिया और अभी बैलेंस कितना हुआ? 450 रुपीज़. हमें क्या किया, इसी को बोलते हैं रिकनसाइल. ये 100 रुपीज़ का डिफरेंस जो है हमने फाइंड आउट कर दिया, और इस 100 रुपीज़ का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो चीज़ें हमने यूज़ की या जैसे हमने फाइंड आउट किया उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज BRS. ओके, आई होप यू एबल टू गेट व्हाट BRS. और पहला जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, दैट की अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन माय अकाउंट. और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट प्लस में होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ 100 रुपीज़ प्लस किए थे. हमने ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी लॉजिकली जो है सीख ली है. नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अमाउंट डायरेक्टली रिड्यूस फ्रॉम माय बैंक अकाउंट. बैंक ने क्या किया? सी, लेट्स टेक एग्जांपल. ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा बैंक का बुक है. ओके, नाउ बैलेंस कितना था? एज पर माय कैश बुक देयर इज अ बैलेंस ऑफ 100. एज पर माय पासबुक देयर इज अ बैलेंस ऑफ, यहाँ पे मैं पासबुक ही लिखना बेटर रहेगा ना, balance of 100. Now what bank did? They deducted charges, that is bank charges of rupees 15. हमको इन्फॉर्म किया क्या? नहीं इन्फॉर्म किया. हमें कोई SMS आया क्या? नहीं आया. बैंक हमसे SMS चार्जेस तो ले रही है, बट दे आर नॉट सेंडिंग अस SMS that we have deducted rupees 15 for your account. Then how we will know? We don't know anything. So as per my mind or as per my cash book, there is a balance of 100 rupees in my bank, but actual balance in my bank is rupees 85 only. Why? Because bank deducted this 15 rupees as a bank charges. Now who is always right? Bank is always right. So मेरे कैश बुक को भी मुझे 85 पे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी ये चार्जेस जो है वो डिडक्ट करने पड़ेंगे, और जब मैं ये चार्जेस डिडक्ट कर दूंगी तब मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, और ये क्या होगा? रिकनसाइल होगा. इसीलिए यहाँ पे मुझे इफेक्ट क्या देना पड़ेगा? इफेक्ट होगा माइनस में. आई होप यू एबल टू गेट सेकेंड पॉइंट ऑल्सो. मैं बस आपको रिवाइज करा रही हूँ, बिकॉज येस्टरडे मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. गाइज, ये चैप्टर में आपको लॉजिकली सोच समझ के करना और सोच समझ के सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे चल के जो है आपको अगर हार्ड कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, स्टिल यू नीड टू अप्लाई योर लॉजिक एंड यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो द थर्ड पॉइंट इज चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड. नाउ मैंने इसका क्या एग्जाम्पल दिया था, दैट देखो मैं हूँ सोनाली, मैंने कोई बुक क्रिएटर से बुक क्रिएट करके लिया. ओके, मैंने पे किया उसको रुपीज़ 60,000. नाउ I have paid, like I am Sonali, I have paid rupees 60,000 to whom? To book creator. Okay, now my bank is ICICI bank and his bank is SBI bank. So what he did, he presented this 60,000 का check in SBI. Okay, और मैंने कौन सा चेक दिया था? ICICI क्या दिया था? ये दोनों बैंक तो डिफरेंट है ना. मैंने क्या मान लिया था, जब मैंने इसको 60,000 रुपीज़ दे दिया, मैंने तब मान लिया था कि भैया 60,000 मेरे ICICI से कट जाएंगे. बट इस SBI को क्या होना पड़ा? SBI को RBI के पास जाना पड़ा, फिर RBI ICICI के पास गई, फिर ICICI ने क्या किया? RBI के थ्रू SBI को कनेक्ट होके क्या किया? 60,000 रुपीज़ जो है वो दे दिया. बट ये सारी प्रोसेस करने में क्या हुआ? देर इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट इज़ कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंस. ये सारी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग गया, इसीलिए जो है मेरे
जो मेरा बैंक का पासबुक है उसमें ये 60,000 तो डिडक्ट ही नहीं हुए, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 60,000 को फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा। इसीलिए इसका इफेक्ट क्या जाता है, इसका इफेक्ट जाएगा प्लस में। आई होप यू एबल टू गेट माई पॉइंट, थिंक लॉजिकली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं और अच्छे से समझाने का आपको ट्राई करूँगी। बट हाँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है अभी तक। सो आई होप यू एबल टू गेट दिस पॉइंट्स ऑल्सो। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, और आई वुड से जो मैंने बताया था 4 पॉइंट्स, उसका एक लास्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। अभी इसमें क्या हुआ, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल है, देखो। ताज होटल जो है उसने क्या किया, अपने जेठालाल जी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे 50,000 का टीवी परचेज किया। और ताज होटल ने क्या किया, जेठालाल जी को 50,000 का SBI बैंक का चेक दे दिया। ओके, यहाँ पे दे दिया। जेठालाल जी ने क्या किया, जेठालाल जी को चेक आते ही जेठालाल वाज हैप्पी। उसने तुरंत नट्टू काका को बोल दिया, नट्टू काका डू एंट्री इन आवर कैश बुक दैट 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड। तो हमने क्या किया, हमारे कैश बुक में 50,000 क्या कर दिए, प्लस कर दिए। बट दिस इज ऑल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस। ICICI बैंक को RBI के साथ जाना पड़ेगा, RBI को SBI के पास जाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में क्या हो गया, टाइम लग गया। इसीलिए मेरा जो पासबुक है इसमें 50,000 तो डिडक्ट हुए ही नहीं। इसलिए हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी ऐसे मान रहे कि अभी तक हमारे इसमें पैसे आए ही नहीं हैं। दिस इज़ वॉट इफेक्ट इज़। अगर आपको ये चारों में से कोई भी चीज़ आती है तो आपको बस इफेक्ट याद रख के जो है और लॉजिकली चीज़ों को सोचना है। आई होप यू एबल टू गेट दिस ऑल द पॉइंट्स ऑफ माइन ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ देखो, मैं आपको एक बार फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है वो बताती हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ आती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको डेबिट करती हूँ। तो मेरे हिसाब से डेबिट क्या है मेरा, एक मिनट, मेरे हिसाब से मेरा डेबिट क्या है, मेरे हिसाब से मेरा डेबिट फेवरेबल बैलेंस है। अगर मेरे इसमें डेबिट होगा तो इसका उल्टा इफेक्ट जो है पासबुक में होगा, और पासबुक में क्रेडिट क्या होगा, फिर अनफेवरेबल होगा। क्या होगा, अनफेवरेबल। और यू कैन से हेयर पॉजिटिव and here negative. Okay, so डेबिट, मेरे इसमें अगर कोई चीज़ आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे इसमें अगर कोई आता है, जैसे फर्नीचर आया, मेरे इसमें फर्नीचर आता है, मैं अगर उसको डेबिट करती हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। ओके, और जो मेरे इसमें इफेक्ट है उसका उल्टा, जस्ट उल्टा इफेक्ट आपको क्या करना है, बैंक में देना है। तो जो मेरे लिए फेवरेबल है वो बैंक के लिए क्या है, अनफेवरेबल है। ऐसा क्यों, देखो बच्चा, just a minute, let me give you a very good logic of here. Give me a minute. ऐसा क्यों होता है, give me a minute. Okay, देखो बच्चा, मेरे पास मेरे ₹1000 है, या मान लो मेरे 1 लाख रुपीज़ है। ओके, आई हैव ₹1 लाख। नाउ मैंने क्या किया, बैंक में जाके इस 1 लाख को डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे तरफ से क्या हुआ, बैंक को चले गए। मेरे लिए तो क्या है, वाओ, मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है ना, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। बट बैंक के लिए क्या ये उसके खुद के पैसे हैं क्या, क्या बैंक के लिए ये बैंक का ओन मनी है क्या, नहीं है, नहीं है, नो, बिकॉज हुज मनी इट इज़ अ मनी ऑफ सोनाली। ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये किसके है, ये मेरे हैं, क्या ये बैंक के हैं, नहीं। तो हम जब भी बैंक में जाके ये 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए ये क्या होती है, बैंक की ये लायबिलिटी होती है। बैंक को ये, बैंक की हमारे ऊपर लायबिलिटी, हमारी बैंक के ऊपर लायबिलिटी हो जाती है। हमें ये 1 लाख रुपीज़ क्या करना है, हमें ये 1 लाख रुपीज़ बैंक को देना है। इसीलिए बैंक क्या करती है, इसको हम जो भी डिपॉजिट करती है उसको अपनी लायबिलिटी मान के उसका इफेक्ट कर देती है।
So I hope you able to get these points also. Now I think we'll move towards our next questions. Before that, before moving to the questions, there is a two types of method to prepare the BRS. Now to prepare the BRS कैसे बनाया जाता है? BRS में ना एक विथ एडजस्टेड कैश बुक होता है, विथ एडजस्टेड कैश बुक, and another is without adjusted cash book. इन दो मेथड से हमें क्या होता है, BRS बनाना होता है. ये जो विथ एडजस्टेड कैश बुक है ना, इसमें आपको एक एडजस्टेड कैश बुक बनाना होता है, जिसमें आपको 2-3 चीज़ें जो है वो दिमाग में डाल के ये कैश बुक बनाना है. लेकिन अभी के लिए हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे. अभी हम कवर कर रहे हैं क्या हो गया, एडजस्टेड कैश बुक के हिसाब से जो BRS बनेगा ये हम इस लेक्चर में देखेंगे. और मैं आपको बताऊंगी कि ये एडजस्टेड कैश बुक, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक के हिसाब से BRS कैसे बनता है. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ इसमें मेथड है प्लस और माइनस मेथड, और यू कैन से 2 मेथड्स होती है BRS बनाने के लिए भी. हम जब भी सॉल्व करेंगे प्लस और माइनस मेथड से ही सॉल्व करेंगे. 2 मेथड से, अब कोई भी मेथड से सॉल्व करते हो तो भी आंसर सही आएगा, बट येस आई वुड रिकमेंड दिस प्लस माइनस मेथड. मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं आपको दूसरे मेथड के बारे में बाद में बताऊँगी. लेकिन मैं अभी प्रोबेबली आपको कौन से मेथड से लेके चलूँगी, तो प्लस और माइनस मेथड से ही लेके चलूँगी. बिकॉज ये क्या है, ये मेथड एक तो रिकमेंडेड है बाय ICAI. दूसरी चीज़ है इजी है, बहुत इजी है ये मेथड. आप बोलोगे दूसरी मेथड से भी तो आंसर सेम ही आता है ना मैम, हम तो वही मेथड सॉल्व करते हैं. बच्चा एक बार आप बस प्लस एंड माइनस से सॉल्व करके देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं जाएगा. ये प्लस और माइनस मेथड जो है बहुत आसान है. आपको बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने थ्योरी पहले से अभी तक कवर की है ना, वो बस इसी मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से. वैसे देखो थ्योरी सब पे अप्लाई होती है, बट ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, ये प्लस और माइनस मेथड की वजह से था और उसके रिलेट में था. इसीलिए ये मेथड ही मैं लेके चलूँगी. दूसरी मेथड भी मैं आपको एब्सोल्युटली बताऊँगी, बट थोड़ा बाद में बताऊँगी, ठीक है. सो दिस मेथड इज़ रिकमेंडेड बाय ICAI. इट्स अ वेरी इजी मेथड, और आपको कोई भी क्वेश्चन आप आराम से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. इसीलिए हम कौन सी मेथड लेके चलेंगे अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो है मैं कौन सी मेथड लूँगी, आपकी प्लस और माइनस लूँगी. क्या दूसरी मेथड से आंसर नहीं आता? बिल्कुल आता है, बहुत अच्छे से आता है. बट हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप दूसरी मेथड से सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. तो मैं ये एक और चीज़ें बताना चाहूँगी. अगर डेबिट है ना किसके हिसाब से, डेबिट एज पर कैश बुक है ना, तो ये क्या होगा, कैश बुक में इसका इफेक्ट क्या होगा और पासबुक में इसका इफेक्ट क्या होगा. देखो, अगर डेबिट एज पर कैश बुक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे बुक्स में अगर डेबिट है तो मैं इसको क्या मानती हूँ, मैं इसको पॉजिटिव मानती हूँ, मैं इसको फेवरेबल मानती हूँ. अभी देखो क्रेडिट है, क्रेडिट और एज पर पासबुक के हिसाब से क्रेडिट है तो क्या होगा, ये हो जाएगा अनफेवरेबल. जस्ट अ मिनट, मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड. मैं एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पाई हूँ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये होता है फेवरेबल और ये होता है अनफेवरेबल. ओके, मैंने अभी तक आपको बताया था
कि कैश बुक्स के हिसाब से अगर डेबिट है तो इसका जस्ट उल्टा इफेक्ट क्या हो जाएगा, पासबुक में हो जाएगा। तो कैश बुक में डेबिट है हमारे लिए फेवरेबल है, तो पासबुक में क्या होगा, ये फेवरेबल नहीं होगा। तो कैश बुक से हिसाब से डेबिट है, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इट इज अ फेवरेबल। ओके, कैश बुक के लिए ये क्या है, फेवरेबल है। नाउ क्रेडिट है, क्रेडिट एज पर पासबुक, पासबुक से हिसाब से क्रेडिट है, इसका मतलब कैश बुक के हिसाब से क्या है, डेबिट है। तो ये क्या है, अनफेवरेबल है, ये क्या है, अनफेवरेबल है। ओके, पासबुक के लिए क्या है, अनफेवरेबल है। नाउ और यू कैन से ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, इसको आप ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ अभी डेबिट बैलेंस है पासबुक के हिसाब से, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो ये क्या है, ये अनफेवरेबल है। और क्रेडिट बैलेंस है पासबुक के हिसाब से, ये भी क्या है बच्चा, ये भी है फेवरेबल बैलेंस। ये आपको बाद में लॉजिकली समझ में आ जाएगा, मैं आपको इसको और अच्छे से बाद में समझा दूंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। सो मैं इस क्वेश्चन में आपको BRS का फॉर्मेट भी समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से लॉजिक्स देखे भी समझाऊंगी कि ये क्या होता है और कैसे होता है। देखो, ICI की जो मैंने आपको बताई, दो मेथड्स है, एक प्लस माइनस मेथड और दूसरी मेथड है एडलेस मेथड। क्या दोनों के हिसाब से करोगे आंसर एकदम करेक्ट आएगा, बट मैं अभी के लिए ये मेथड फॉलो करूंगी। एडलेस से भी करोगे नो प्रॉब्लम, बट मेरा मानना है आप एक बार प्लस माइनस मेथड यूज करके देखो, ये बहुत इजी है। मैंने जैसे आपको बताया, ICI ने रिकमेंड भी किया है ये मेथड से यूज करना, और इससे जो है मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आई यूज टू प्रेफर और आई प्रेफर ओनली प्लस एंड माइनस मेथड। एक बार बस मेरे साथ इस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। नाउ इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम योर ICAI स्टडी मॉड्यूल। प्लीज निकाल देना कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम योर ICAI स्टडी मॉड्यूल। नाउ यहाँ पे क्या दिया है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आपने पूरा लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं लिख रही हूँ BRS ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ओके, नाउ ये कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, ये कॉलम होगा प्लस का, क्योंकि हम प्लस माइनस मेथड कर रहे हैं इसलिए ये कॉलम होगा प्लस का और ये कॉलम होगा माइनस का। ओके, नाउ देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए, उन्होंने क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000 रुपीज। ओके, नाउ आप बोलोगे मैम ये फेवरेबल बैलेंस है अनफेवरेबल बैलेंस है, तो बच्चा अगर कुछ गिवन नहीं है दैट इट इज़ अ फेवरेबल बैलेंस, इट इज़ अ ओवरड्राफ्ट और एनीथिंग एल्स, तो आपको हरदम क्या मानना है, ऑलवेज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम it is which balance, it is favorable balance। ओके, जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया हो, आपको जस्ट दिया हो बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹2,40,000, आपको इतना ही दिया है। यहाँ पे आपको नहीं बोला गया है ये प्लस में है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो आपको क्या मानना है, आपके ऑलवेज मानना है ये फेवरेबल है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी हिंट गिवन। यहाँ पे कोई हिंट गिवन नहीं है, इसलिए क्या मैं मानूंगी ये पॉजिटिव बैलेंस है। ओके, सो
they have given me balance as per cash book rupees 2,40,000. So let's write here that balance as per cash book. How much it is? It is rupees 2,40,000. Okay. now देखो ये डन. अभी सेकेंड एंट्री क्या दिया है? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स रुपीज 1,36,000. नाउ मैंने क्या किया? सी यहाँ पे बहुत अच्छे से लॉजिक लगाना. 2-4 बार अगर आप लॉजिक लगाना सीख जाओगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आराम से कर पाओगे. तो यहाँ पे क्या हुआ? चेक इशू, मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने बुक क्रिएटर को चेक दे दिया. आई हैव इशू चेक टू बुक क्रिएटर बट बुक क्रिएटर नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक. मैंने क्या किया था? जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने बुक क्रिएटर को चेक इशू कर दिया था. बट जो मैंने आपको रीजंस बताए ना कि आरबीआई के पास जाना पड़ता है, बैंक्स अलग अलग होती है, उस रीजन की वजह से वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया. ओके. तो आपको इसका जो है मतलब समझ गया कि चेक इशू, आई हैव इशू चेक बट द पर्सन whom I have given check he not presented it in the bank. So what will be the effect? देखो ये मेरी बैंक है, ये मेरी कैश है. माई राइट हैंड इज माई बैंक. ओके. सो मैंने क्या किया? चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक. जब मैंने चेक इशू किया सामने वालों को तो मैंने क्या माना? मेरा बैलेंस कम हो गया. ओके. मैंने माना मेरा बैलेंस कम हो गया बट क्या एक्चुअल में बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ. मेरे बैंक में तो अभी तक कोई इफेक्ट आया ही नहीं. इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा. मुझे कौन सी लेवल तक मेरा बैलेंस लाना है? बैंक के लेवल तक. मैंने क्या किया? उसको 60,000 का चेक इशू करके, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने 60,000 का चेक इशू करके मेरा बैलेंस तो कम कर दिया बट एक्चुअल में क्या बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ. इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा. इसीलिए इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट जाएगा प्लस में. ओके. यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसका इफेक्ट जाएगा प्लस में. नाउ एक बार पूरे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, फिर हम 1 by 1 लिखेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट रुपीज 90,000. अभी सेम इफेक्ट हुआ. देखो क्या हुआ? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक. नाउ मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, जो मेरे एग्जाम्पल था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से. Who I am? I am Gada Electronics. I have sold TV to Taj Hotel. Okay. So ताज होटल को मैंने टीवी सेल किया था. ताज होटल ने मुझे 50,000 का पेमेंट कर दिया था. मेरे जो है एग्जाम्पल है उसके हिसाब से. तो मैंने क्या किया? जेठालाल जी ने क्या किया? अपने, ये है मेरी बैंक, ये है जेठालाल जी. ओके. सो व्हाट जेठालाल डिड? ही, जब भी उसको ताज होटल से चेक आया 50,000 का, उसने तुरंत अपने बैंक में, अपने कैश में, अपने कैश बुक में उसका इफेक्ट दे दिया, अपना बैलेंस बढ़ा दिया. बट क्या एक्चुअल में बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा. क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो सारी लेंदी प्रोसेस होती है ना, ताज होटल की बैंक जो है वो SBI है, जेठालाल की बैंक है ICICI है, उन्हें RBI के थ्रू कनेक्ट होना होता है, या फिर एक्चुअल में जेठालाल की नटू काका चेक डिपॉजिट करना भूल गए होंगे. ओके. सो जैसे ही जेठालाल के पास चेक आया, उसने क्या मान लिया कि मैंने अपने बैंक में तो चेक डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा. तो फटाक से उसने अपने कैश बुक में क्या किया? बैलेंस बढ़ा दिया. बट क्या एक्चुअल में पासबुक में या बैंक के हिसाब से बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैंक के लेवल के ले आना पड़ेगा. बिकॉज हु इज ऑलवेज करेक्ट? बैंक इज ऑलवेज करेक्ट. तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से माइनस करना पड़ेगा. तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा? इसका इफेक्ट जाएगा माइनस में. यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. ओके. नाउ बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू रुपीज 300. देखो ये मेरी बैंक है, दिस इज राइट हैंड इज माई बैंक. ये मेरा अपना बुक है, कैश बुक. अभी बैंक ने क्या किया? अपने इससे चार्जेस डिडक्ट कर दिए. कितने? 300 रुपीज़, मुझे बिना बताए. जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था
15 रुपीज़ बैंक ने SMS चार्जेस डिडक्ट कर दिए मुझे बिना बताए। क्या मुझे बिना बताए कर दिए, और मेरे इसमें बैलेंस तो ज़्यादा है, मेरे कैश बुक को तो पता ही नहीं है ना बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, इसीलिए मैं तो अभी भी उतने ही बैलेंस पे हूँ। बट बैंक ने क्या किया, 300 रुपीज़ से बैलेंस कम कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी 300 से बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिकॉज हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट। सो बैंक चार्जेस क्या जाएंगे मेरे, माइनस में। ऑलवेज यूज वर्ड प्लस और माइनस, बिकॉज हम प्लस माइनस मेथड फॉलो कर रहे हैं। एड लेस भी आप बोल सकते हो, बट इट्स बेटर टू यूज वर्ड प्लस एंड माइनस। नाउ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू ₹1250। नाउ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बैंक ने क्या किया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया। क्रेडिट किया मतलब क्या, देखो बैंक के हिसाब से बैंक ने अगर क्रेडिट किया तो मेरे कैश में क्या होगा, कैश में होगा डेबिट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे लिख के दिया ऑलरेडी उन्होंने, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब मेरे पासबुक में या मेरे बैंक में क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। इसका उल्टा इफेक्ट क्या होगा, मेरे कैश बुक पे होगा। मेरे कैश बुक में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कैश बुक में डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, और मुझे पैसा मिला, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, दैट हम इसको प्लस कर देंगे, बिकॉज मेरे इसमें पैसा आया। बैंक ने तो अपने इसमें इफेक्ट कर लिया, लेकिन मैं अपने कैश बुक में इफेक्ट नहीं किया अभी तक, तो मैं इसको इंटरेस्ट को मेरे इसमें भी ऐड कर दूंगी। नाउ इतने ही थे, बैलेंस दिया है, ये बैलेंस अल्टीमेटली मैच करना चाहिए। तो लेट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे लिख लो पहले प्लस, जो भी सारे प्लस वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी सारे प्लस वाले ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। प्लस वाले सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस वाले ट्रांजेक्शन। तो प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, एक्चुअली मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ इस पर, पता नहीं क्या हो गया। ओके, सो प्लस में कौन से थे, सबसे पहला था चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू ₹1,36,000। तो यहाँ पे लिख दो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। मैंने इसका क्लियर आपको लॉजिक समझा दिया है। आपको भी मैं जैसे सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। पहले एक बार पूरा प्लस माइनस लिख लेना है, देन ओनली आपको आगे का प्रोसीजर करना है। यहाँ पे क्या हो गया, ओह नो, ओके जस्ट अ मिनट, सॉरी, 1,36,000। ओके, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, 36,000 ना। ओके ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट। नेक्स्ट था चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक, ये वाला थर्ड वाला, चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक बट नॉट क्लियर्ड, कितने का, 90,000 का। सो इसका इफेक्ट क्या था, माइनस में। सो लिखो चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक बट नॉट येट क्लियर ₹90,000। सो यहाँ पे लिखो चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक, जस्ट अ मिनट, अरे यार, चेक, जस्ट अ मिनट, ये कुछ हैंग हो रहा है सिस्टम में, गिव मी अ सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है। Am I able to record or not? I don't know. Just a minute. Let me close the other windows of my laptop so it will work a good manner. Give me a second. I think बहुत सारी विंडोज़ मैंने ओपन करके रखी है, इसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड। ओके,
ओके ओके ओके, आई होप ये अभी अच्छा चल जाए। अभी भी शायद ये नहीं चल रहा है। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड भैया, प्लीज़ इतना लेक्चर रिकॉर्ड करने दे मुझे। ओके, माइनस में था हमारा, क्या था, दैट चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक बट नॉट येट क्लियर अमाउंटिंग ₹90,000। इसका इफेक्ट हमने माइनस में पहले ही देख लिया था। तो चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक, check deposited in a bank but not yet cleared, माइनस में इफेक्ट था। कितने का था वो? 90,000 रुपीज़। आप इसको और अच्छे से प्रेजेंट करना, मेरे थोड़े सिस्टम में लिखने में दिक्कत आती है, इसीलिए मैं और अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ उसको। ओके, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹300, इसका भी इफेक्ट क्या था? माइनस में था। कितना माइनस में होगा? बैंक चार्जेस ₹300। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट है, आई थिंक नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटिंग टू ₹1250। इसका इफेक्ट क्या था? प्लस में था। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कितना था ये? 1250। ना वो कौन सी साइड ज़्यादा है देखो एक बार, 240 + 136 + 1250, आई थिंक प्लस साइड ही ज़्यादा है। इसका एक बार टोटल लगाना प्लीज़, प्लस साइड का। 3,77,250। माइनस साइड का टोटल कितना है? 90,000 + 300, 90,300। 3,77,250 माइनस 90,700, 300 कितना आता है? 2,86,900, 2,86,900। देखो हमने चालू किसके हिसाब से किया था? हमने चालू किया था कैश बुक से हिसाब से, तो हमें एंड किस पे करना है? पासबुक के हिसाब से। अभी ये फेवरेबल बैलेंस है। देखो प्लस साइड का टोटल कभी भी ज़्यादा आता है ना, तो ये क्या है? हमारा फेवरेबल बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है? देखो एक बार अच्छे से टोटल कर लो, 2,86,900 आ रहा है मेरा टोटल। यस, 2,86,000। और देखो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो इसका, 2,86,900। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन गाइज। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप करोगे क्वेश्चन, जैसे जैसे आप लॉजिक्स लगाते चलोगे, बाद में आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खटाखट से टिक कर दोगे कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। Illustration number 4 from your ICAI study material. Which illustration? Illustration number 4. Now let's move toward this illustration number. Okay. What is it? From the following particular, ascertain the balances that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2022. Now सबसे पहले हमें क्या देखना है कि BRS किसका? BRS of A as on 31st December 2022, राइट? कौन सी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं? प्लस माइनस। तो राइट हियर प्लस, राइट हियर माइनस, और ये क्या है? ये है पर्टिकुलर्स। ओके, now let's move the question. बैंक ओवरड्राफ्ट, ओ हो, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस? मतलब माइनस में बैलेंस।
माइनस में बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस वाला बैलेंस होता है। जब भी हमारे ऊपर कोई लोन होता है या फिर कुछ भी चीज़ें होती है या फिर जब भी हमारे पास इनफ मनी नहीं होता है तब हमारा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तब हमारा बैलेंस जो है वो माइनस में है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक्स के हिसाब से मेरा जो बैलेंस है वो 6340 कैसे है, माइनस में है। तो लेट्स राइट ओवर हियर दैट ओवरड्राफ्ट, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप प्लीज पूरा लिखना। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, जस्ट मिनट, ये था 6340, माइनस में था। ओवरड्राफ्ट है तो क्या है, माइनस में है। और यू कैन से ओवर हियर दैट अनफेवरेबल, मैं बोलूँगी ये अनफेवरेबल बैलेंस है या फिर आपका निगेटिव बैलेंस है। ओके, नाउ ये तो हो गया डन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओके, देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपका माइनस में बैलेंस होता है। तो कभी बैंक आपको माइनस वाले बैलेंस पे इंटरेस्ट देगी क्या? आप बोलोगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो मैम, क्या हमारे नेगेटिव बैलेंस पे बैंक कभी इंटरेस्ट देती है क्या? कभी नहीं देती, बैंक हरदम इंटरेस्ट लेती है। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू हो जाता है तब क्या होता है, बैंक्स आपसे भर भर के इंटरेस्ट लेती है, राइट, एम आई राइट? तो ओवरड्राफ्ट पे जब भी आए कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे आया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता गाइस, इट इज ऑलवेज निगेटिव। क्यों? बैंक क्या करती है, आपके ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, बैंक आपको पैसा नहीं देती। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने प्लस किया था क्योंकि बैंक ने क्या किया था, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया था। मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक समझाया था, बैंक ने अगर क्रेडिट किया है तो हमारे कैश बुक में क्या होगा, डेबिट होगा। कैश बुक के हिसाब से डेबिट मतलब हमारा फेवरेबल बैलेंस, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मतलब ऑलवेज 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 निगेटिव में ही जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो ये हमारी बैंक है, ठीक है, दिस इज आवर बैंक। बैंक ने क्या किया, अपने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, हमारी ओर से इंटरेस्ट ले लिया, हमारी ओर से पैसा ले लिया, मतलब बैंक ने क्या किया, माइनस किया। हु इज ऑलवेज राइट, बैंक इज ऑलवेज राइट, हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जाएगा माइनस में, ये जाएगा माइनस में। ओके, नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस of ₹400 are debited in the passbook only. Now यहाँ पे क्या हुआ, देखो बैंक चार्जेस हैं 400 के, बैंक ने क्या किया, आपको बिना बताए बिना कुछ बोले आपके इसमें से 400 रुपये डिडक्ट कर लिए, SMS चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बतेरे चार्जेस बैंक वाले चार्ज करते हैं। तो बैंक ने क्या किया, 400 रुपीज़ इसमें से कम कर दिए। ओके, सो हु इज ऑलवेज राइट, बैंक इज ऑलवेज राइट। आपको भी क्या करना है, आपको भी 400 रुपये से 400 रुपीज़ से ये क्या करना है, कम करना पड़ेगा। इफेक्ट क्या होगा, माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं हम माइनस। ओके, नेक्स्ट, चेक इशू बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December 2022 अमाउंटिंग टू ₹11,16,000। नाउ आपको एक जगह प्लीज नोट कर लो दैट चेक इशू, यहाँ पे क्या लिया है, चेक इशू, प्लीज नोट इट डाउन, चेक इशू बट नॉट कैश्ड is equal to check issue but not yet presented. देखो ये जो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड है ना, दिस चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड है ना, इसको बैंक, इसको क्वेश्चन का सॉरी सो सॉरी एक्सक्यूज मी,
चेक इशू बट नॉट येट कैश्ड है ना, या फिर चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, जिसका एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाया था। इसको बोलने की 3-4 टाइप्स है। उसमें से पहला टाइप है चेक इशू बट नॉट येट कैश्ड। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड का ही मतलब होता है चेक इशू बट नॉट येट कैश। मैंने तो इशू कर दिया बट सामने वाले ने अभी तक बैंक में दिया नहीं, दैट इज उसने इन कैश उसको किया नहीं, वही मतलब बनता है। बस एक क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है दैट चेक इशू बट नॉट येट कैश। यहाँ पे क्या लिख के दिया उन्होंने, चेक इशू बट नॉट येट कैश्ड। इसका मतलब क्या होता है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। प्लीज नोट डाउन, चेक इशू बट नॉट येट कैश का मतलब होता है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इसका लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था। मैंने क्या किया, मैं सोनाली हूँ, मैंने किसी बुक क्रिएटर से बुक क्रिएट करवा ली, ठीक है। मैंने उसको 60,000 का चेक दे दिया। मैंने क्या माना, मैंने अपने कैश मैंने अपने इससे बैलेंस कम कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट, बिकॉज बैंक तक तो अभी तक ट्रांजेक्शन आया नहीं। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से इसको प्लस कर देना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, चेक इशू बट नॉट येट कैश्ड, इसका इफेक्ट होगा प्लस में ₹11,68,000। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट एनीवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज checks paid into bank but not cleared before 31st December। इसका मतलब क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका मतलब क्या होता है, ये भी कहीं लिख लो ना प्लीज़, जस्ट अ मिनट। ये आप, आई होप आपने ये नोट लिख लिया है, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है ना। ये नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाद में इससे कंफ्यूज हो जाओगे। आगे का एक और नोट लिखा रही हूँ मैं, दैट चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared is equal to check paid but not cleared। इसका भी यही मतलब होता है। सॉरी, नॉट फीलिंग गुड। देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड इज इक्वल टू चेक पेड बट नॉट येट क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। जेठालाल ने किया था, ताज होटल ने 50,000 का चेक जेठालाल को दिया था। जेठालाल ने क्या माना कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बट क्या एक्चुअल में जेठालाल के बैंक अकाउंट में पैसा आया, नहीं आया। तो हम, हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक तक आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इफेक्ट इज माइनस दैट चेक पेड into bank but not yet cleared. Now interest on investment collected by bank and credited in passbook। यहाँ पे क्या हुआ, देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि बैंक के इसमें क्रेडिट है, क्रेडिट इन अ पासबुक। इसका मतलब क्या होगा, डेबिट इन अ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका दिमाग एग्जाम में काम नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पे दिया है बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो गया, बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो गया, इसका उल्टा इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे कैश बुक में होगा, हमारे कैश बुक में डेबिट हो जाएगा। कैश बुक में डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। आई होप यू एबल टू गेट। देखो, ऐसे भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने कोई बॉन्ड्स परचेस किए या मैंने कुछ भी खरीदा जिससे मुझे इंटरेस्ट आने वाला है। मैंने कहीं रियल इस्टेट का कुछ खरीद लिया जिससे मुझे इंटरेस्ट आने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, तो ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए इनकम है, ये मेरे लिए कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। सो आई होप यू एबल टू गेट माई पॉइंट। ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको समझा दिए। नाउ वन बाय वन वी विल राइट ऑल दिस। नाउ फॉर सेकेंड इज
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 month 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक. सो माइनस में जाएगा. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं प्लस माइनस. ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए प्लस के और ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए माइनस के. सो क्या था वो? दैट इंटरेस्ट ऑन ओडी रुपीज 160. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रुपीज 160. ओके, नेक्स्ट. ओके, सेकेंड इज डन. थर्ड इज बैंक चार्जेस 400. क्या इफेक्ट था? माइनस. तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस रुपीज 400. बैंक चार्जेस रुपीज 400. ओके, नेक्स्ट. थर्ड इज डन. फोर्थ, चेक इशू बट नॉट कैश. मैंने इसका क्या बताया था? चेक इशू बट नॉट येट डिपॉजिटेड और चेक इशू बट नॉट येट क्लियर्ड सेम ही मीनिंग होता है. चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड वाला और चेक इशू बट नॉट येट कैश इज इक्वल. क्या है ये? प्लस में इफेक्ट है. तो यहाँ पे लिखो चेक इशू बट नॉट येट कैश. जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है ना, वही लैंग्वेज में हम लिखेंगे. चेक इशू बट नॉट येट कैश्ड. मैंने तो इशू कर दिया बट सामने वाले ने अभी तक कैश नहीं किया. कितने का था वो? ₹11,68,000. ओके, नेक्स्ट इज चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड. इसका मतलब मैंने क्या दिया था आपको? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर. सेम. प्लीज़ आप ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ कहीं पे इंपॉर्टेंट बोल के नोट डाउन करो ताकि आपको जो है बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा. चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर ₹22,17,000. क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर. मैंने क्या किया? मैंने बैंक में चेक पेड कर दिया बट बैंक ने मुझे अभी तक पैसा दिया नहीं है. 22,17,000. ओके, नाउ ये भी हो गया. लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की, उसमें बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं की. बैंक ने अपने पासबुक में एंट्री ऑलरेडी कर दी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी एंट्री करनी पड़ेगी ₹12 लाख की. तो आई विल डू हियर प्लस कर देती हूँ मैं यहाँ पे. क्या नाम से? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. कितना का है ये? 12 लाख का. नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज डन. अभी हम कर देते हैं इसका टोटल. ओके, बैलेंस तो नहीं दिया गया है. लेट्स डू टोटल. कौन सा साइड ज़्यादा है? ₹11,16,000 प्लस 23,68,000. आई थिंक प्लस साइड का टोटल ज़्यादा है. तो यहाँ पे लिख दो 23,68,000. प्लस साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब फेवरेबल बैलेंस है. ऊपर हमने कैश बुक के हिसाब से लिखा है तो नीचे कौन सा होगा? नीचे पासबुक के हिसाब से होगा. तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? माइनस करो 23,68,000 माइनस 22,17,000 माइनस 400 माइनस 160 माइनस 6340 इज इक्वल टू 1,44,100. तो ये क्या हो रहा है? सो ये आया मेरा. क्या आया? ये मेरा आंसर आ गया दैट 1,44,100.
I hope you able to get my points. I hope you able to clear all the confusion जो भी आपके हैं, आपको वो सारे क्लियर हो चुके होंगे. नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बट हाँ मैं चाहती हूँ, मैं काम करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा एडवांस लेवल का नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ. अभी के लिए आप क्या करो, ऐसे जो भी क्वेश्चंस है ऐसे टाइप के जो भी आपको MTP RTP में मिल रहे हैं, वो सारे ऐसे क्वेश्चंस करने का ट्राई करना, क्योंकि मॉड्यूल तो मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रही हूँ. अगर मुझे टाइम मिलता है लास्ट में तो मैं ट्राई करूँगी मैं आपके सारे MTPs और RTPs भी कवर करके दूँ. सो अभी के लिए आप इसको रिवाइज करो, आप अच्छे से समझो. चेक इशू बट नॉट येट क्लियर, नॉट येट डिपॉजिटेड, ये सारी चीज़ें जो है इसका इफेक्ट जान लो. आपको प्लस माइनस मेथड से ही सॉल्व करना है, ये मैं रिकमेंड करूँगी, ये मैं चाहूँगी, क्योंकि आपकी गलतियाँ बहुत कम होंगी. ठीक है. सो फॉर टुडे विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर गाइस. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी सारे क्वेश्चंस और बाकी सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करने का ट्राई करूँगी, और हम आगे की चीज़ें भी सीखेंगे. तब तक गाइस रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, बहुत मज़े करो. आप बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत सारा रिविजन करो, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में पास हो जाओगे. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. गुड बाय, थैंक यू.